खुदा. We love you, Lord. Thank you, Lord. आइए हम सब उसे धन्यवाद करें. तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं. तू कहता है जहाँ पर 2 या 3 तेरे नाम से उपस्थित है, तू वहाँ पर है खुदा. Thank you, Lord. We thank you for your presence, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Let's all tell him, Jesus, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. Let's all sing again, Jesus, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer.
Blessed Redeemer, blessed Redeemer, living one. Jesus, name above all, beautiful Savior, glorious love, glorious love, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, living word. Let's all lift our hands and tell him Jesus' name above all names. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one. Living one. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious love, Emmanuel, God is with us, God is with us, blessed Redeemer, living one, living one. Thank you, Lord. You are living word, Father. You are blessed Redeemer, Lord. You are glorious, Father. Thank you, Lord. We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. और प्रभु ने हमें जीरो से लेके मतलब हमने नहीं सोचा था कि कैसे हम फिर से रिस्टोर करेंगे, लेकिन खुदा ने हमें 1 साल पहले ही वो सब चीज़ों के लिए हमें तैयारी कर दी थी। लेकिन एक एक चीज़ हमने एक एक चीज़ नई नई से आशीष करके परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। इवन मेरे ऑफिस में भी मेरे बॉस ने नया गाड़ी लिया और नए बाइक से हमें आशीष किया। मैं यहाँ पर फिर से रिस्टोर हुआ तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने कोई भी पुरानी चीज़ों से नहीं बल्कि नई चीज़ों से आशीष किया। लेकिन हमारा खुदा उसका मन हमसे भरा हुआ है। मेरी वाइफ मुझे बहुत टाइम पहले बोल रही थी कि जब ये चीज़ें पुरानी हो जाएंगी तो हम कैसे नया ले सकेंगे, लेकिन उस समय ही परमेश्वर ने
वो चीज़ के बारे में सोचा और हमारे लिए ये आज लास्ट मंथ में किया। हम उसको महिमा देते हैं और सच में खुदा बहुत अच्छा है कि हमें गिरने नहीं देता है। कैसी भी कौन सी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो हमें उठा के अपने गोद में उठा के ले चलता है। और मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। और प्रभु ने हमें, और लास्ट नाइट की भी एक गवाही है। मेरी वाइफ को पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उस समय बहुत समय हो गया था। मैं बोला कैसे करूँ, लेकिन मैंने पूछा कि प्रेयर करूँ, तो बोला हाँ। तो मैंने ऑयल लगा के प्रेयर किया और मॉर्निंग में सब नॉर्मल हुआ। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो। थैंक यू। In this new place, God is using us miraculously. In the past couple of months, God is bringing souls into our life. Yes, God is blessing each and every one of us as we learning the end time prophecies, as we are attending the meetings. God is establishing His covenant, as Pastor said, and He is going to show His light very, very firmly and very brightly through His children. In this new place, we are able to share His seed. We are able to sow His seed, I should say, in many, many, many souls. So yes, God is working miraculously. And as just Brother Hitesh said, that He is, as much as we sow the seed and water the seed, God is blessing us physically, spiritually, materially, and mentally. Yes, there are many ups and downs that we have noticed in these 2 months, which we have shared with Brother Joy and Sister. God is definitely helping us and making us strong, so that our feet is upon His rock of salvation. प्रभु बहुत अच्छा है और हमारे भाई एडविन और उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और हमारे चारों ओर परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। वो अपने बच्चे को कभी भी नीचे नहीं झुकाता, पर हमेशा उसके सर को ऊंचा उठाते रहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा बिजनेस जो वो कर रहे हैं, सीड सो करने का, यानी बीज बोने का, यानी परमेश्वर के वचन को किसी के जीवन में बोने के लिए, तो सच में प्रभु बहुत अच्छा है। और इसमें 100% फायदा नहीं होता, पर मुझे लगता है मल्टीपल ऑफ 100s and 1000% फायदा होता है, जो भटके हुओं को परमेश्वर के घर में लेकर आते हैं। प्रभु बहुत आशीष करे इस परिवार को, इनकी सारी डिजायर्स जो यीशु क्रिस्त में है पूरी करे। प्रभु की स्तुति हो। और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा करे। मला आहे ना खूप दिवसापासून आहे ना सायनाचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे माझी सर्दी आहे ना बाहेर पडत नाही, इथे जाम होते, डोकं वगैरे, नाक वगैरे, नाकाचं हाडूक वगैरे सुजतं. पण आता 1 वर्ष झाले की मी औषधं घेतल्यानंतर मला अजून कधीच वेळ नाही आली औषधं घ्यायची. मला सर्दी इथे जाम पण नाही होत आणि बरं वाटते आहे. म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद करते. आणि दुसरी अशी माझी गवाही आहे की मला आहे ना बॅक साईडला आपला पाठीचा कणा असतो ना, तो तिथे एंड होतो ना, तिथे आहे ना 2 वेळा माझं ऑपरेशन झालेलं आहे. तिथं पस जमा होतो. पस जमा झाला की मग नंतर ते ऑपरेशन पहिल्याच टायमाला फुटलं नाही. ऑपरेशन केलं त्याचं. दुसऱ्या टायमाला पण तसंच झालं, फुटलं नाही म्हणून ऑपरेशन झाले. ते 7-8 वर्ष झाले ते होतच होतं. पस व्हायचा आणि फुटायचा. 2 वेळाच फक्त ऑपरेशन केलं. नंतर मग ते होतच राहिलं. खूप सुजायचं आणि असं ठसठस मारायचं. पण आता जेव्हापासून 1 वर्षामध्ये म्हणजे मी प्रार्थनेमध्ये आले, तेव्हापासून मला म्हणजे असं कधीच नाही झालं. नाहीतर महिन्यातून होतच, दर महिन्याला होतच होतं माझं असं. पण आता 1 वर्ष झालं मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळे मी धन्यवाद करते प्रभूला, की मला खूप म्हणजे न सांगता माझं हे बरं केलंय. म्हणजे मी बोलले पण नाही देवाला, पण त्यांनी माझं प्रभु चांगलं बहुत केलं. अच्छा है। हमारी बहन को सच में चंगाई दी है और आपने सुना कि बिना मांगे उन्हें चंगाई मिली है।
ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि बिना मांगे, क्योंकि जब हमारा हमें दुखता है, हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारे अंदर में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो जीवित खुदा है जो आपके दिल के गहराइयों को समझता है। और वो जब हम भीतर की कोठी में अपना हाथ उठाते हैं, वो देखता है और उसका उत्तर देता है। सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं हमारी बहन को चंगाई देने के लिए, उन्हें पूरा चंगा करने के लिए। और सच में प्रभु महान है, वो अद्भुत है। हालेलुया। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। मगाशी माझ्या मुलाने साक्ष दिली ग्रंथने. खरंच त्याला 2-3 दिवसापासून ताप वगैरे होता, पोटात इन्फेक्शन होतं, त्याला विकनेसपणा होता. मी त्यावेळेस पास्टरांना फोन केला. त्यांनी माझ्या ग्रंथवर प्रार्थना केली. मीही त्याच्यावर प्रार्थना केली होती. मगर आंटी, अंकल सगळ्यांनी प्रार्थना केली. त्यादिवशी त्याला एकदम मम्मा माझ्या प्रभूनी सगळ्यांच्या प्रार्थनाद्वारे प्रभूनी कार्य केलं आणि आता तो व्यवस्थित आहे. साक्ष देण्यासाठी प्रभूनी त्याला उभं केलं. मी धन्यवाद देते प्रभूला मनापासून. माझ्या मिस्टरांना गेल्या रविवारी करंगळीवर ग्राइंडर गेला. तर करंगळीचं नख त्यांचं बाजूला झालं आणि करंगळी खूप सुजली, पायाची करंगळी, आणि पाय वगैरे सुजला होता. त्यांना त्रास होतो. त्यावेळेस पण मी प्रभूला इथे प्रार्थना केली, त्यांची जखम तू सुकव. तुझं वचन सांगतंय की तुझ्या फटक्याने आम्हाला आरोग्य लाभलेलं आहे. खरंच प्रभू, आमच्या जखमा तू बऱ्या केलेल्या आहेस. आणि खरोखर त्यांची जखम ती भरून आली. नख पण व्यवस्थित झालं आणि प्रभूनी त्यांना व्यवस्थित ठेवलं. प्रभूला मी धन्यवाद देते. और जो उस पर आशा रखते हैं, उससे सारे संकटों से वो छुड़ाता है। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, हमारे भाई को चंगा किया, उनके स्वेलिंग को, उनके जख्म को ठीक किया और पूरी तरह से चंगा किया। सच में यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए थे। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, हमारे विचारों के परे वो काम करता है। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है प्रभु। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. माझ्या डोळ्याचं ऑपरेशन होणार होतं आणि मला डेट दिली, तर मी रात्री पास्टरला फोन केला 14 तारखेला, का पास्टर माझ्या डोळ्याचं ऑपरेशन आहे, उद्या सकाळी मला जायचंय, तुम्ही प्रेयर करा. कारण मी घाबरतच होती. आणि तिथं गेल्याच्या नंतर मग पास्टर बोलले काय होणार नाही, प्रेयर केलीये, तुम्ही बिंदास जा. मला इतका घाम सुटला, मी घाबरली आणि मला बीपी माझा वाढला. आणि मग तिथं बसून बसून मी प्रेयर केली आणि मला मग ऑपरेशन माझं केलं. तो मला काही त्रास झाला नाही आणि कधी माझं ऑपरेशन केलं मला काहीच माहिती नाही. आणि मी देवाचे खरंच धन्यवाद देते, उपकार मानते का प्रभू तिथं उपस्थित होता. प्रभू खरंच तो डॉक्टरांचा डॉक्टर, वैद्याचा वैद्य आहे. साळवेंना खूप पोटाला त्रास होत होता, त्यांना खायला पण होत नव्हतं आणि काही खायची त्यांना म्हणजे त्यांचं पोटच एकदम हे झालं होतं, फुगत होतं असं. म्हणून मग मी पास्टरला फोन केला. पास्टर म्हणले काही घाबरू नका, मी प्रेयर करतो. आणि त्यांच्याकडे पण पास्टरकडे पण दुसरे पास्टर होते, मग त्या पास्टरनी पण त्यांच्यावर प्रेयर केली. म्हणून आता त्यांना काही त्रास नाहीये आणि ते व्यवस्थित आहेत. म्हणून मी प्रभूचे लाख लाख कोटी कोटी धन्यवाद देते का प्रभू कितना चांगला. धन्यवाद. हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। वो कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझे तेरे कोई हानि होने नहीं देगा। हालेलुया। सच में वो हालेलुया। बहुत अच्छा है और कोई विपत्ति आप पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। सच में जब हम बहुत ही डर जाते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सोना सचदेवा है। ये कुछ ही समय पहले की बात है। फरवरी में मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगा, मेरे सर में दर्द होने लगा और उसके साथ साथ सर दर्द 1, 2, 3 दिन, फिर तीसरे दिन चक्कर आने लगे और चक्कर आने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगा। एक जना 2-2 जन के बराबर नज़र आने लगे। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा लेफ़्ट साइड धीरे धीरे नम होता जा रहा था, बिल्कुल जैसे कि जिसमें जान ही नहीं होती। मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरा लेफ़्ट साइड पूरा स्वेल होता जा रहा था, फेस का और हेड का। और फिर 14 फ़रवरी को मैंने अपनी सिस्टर जीजू को बोला,
कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे कुछ अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। तो मैंने पहले ही सबको प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी थी, पास्टर जॉय बंतु जी को भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी थी। वो हमेशा मुझे वचन के साथ एनकरेज करते हैं और हमेशा वो मुझे लिखते हैं कि पीस बी विद यू। ये जो शब्द है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहे गए हैं, ये किसी व्यक्ति के नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहे गए थे जो मुझे हमेशा शांति देते। मैं बस ये पढ़ लेती थी और मुझे शांति मिलती थी कि हाँ परमेश्वर तू मेरे साथ है। और उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर ने मुझे देखकर बोला कि इसका MRI करवाना पड़ेगा, इसको आज एडमिट करो। जब मैं एडमिट हुई तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसे कैसे एडमिट कुछ, तो फिर MRI करवाने के बाद जब देखा रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में आया ब्रेन स्टेम ट्यूमर, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि ये कैंसरस भी हो सकता है, ये लाइलाज बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया, कोई भी इलाज नहीं है ऐसा बताया गया डॉक्टर ने। पर मेरी सिस्टर और मेरे जीजू ने वहीं पे ये वर्ड को कैंसिल किया और मुझे 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया। मुझे मेडिकेशन दिया ताकि मैं चलने फिरने के लायक हो सकूं। तब तक मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत एनकरेज मिल रहा था और सबके मेरे को प्रेयर आ रही थी कि कोई नहीं, गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ विद यू। और मुझे यही सांत्वना मिल रही थी। परमेश्वर भी मुझसे कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जब मैं घर आई, घर आने के 2 महीने बाद फिर से मुझे ऐसी तकलीफ़ होने लगी। डॉक्टर ने बोला था इसको रेडिएशन से ही ये ब्रेन ट्यूमर छोटा होएगा पर जाएगा नहीं, पर मे भी शायद ये कुछ ही समय के लिए ज़िंदगी जी सकती है। परमेश्वर ने, मेरे महान परमेश्वर ने इस शब्द को कैंसिल किया, इस शब्द को ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की हर एक डोर सिर्फ मेरे महान जीवित परमेश्वर के हाथ में है। ये मेरे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। ऐसा कोई भी शैतान की हिम्मत नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी पर प्रहार कर सके। जैसे अय्यूब के ज़िंदगी में से उन तमाम चीज़ों को उसने ले लिया, उसके सब बच्चों को ले लिया शैतान ने, पर मेरे परमेश्वर ने शैतान को बोल रखा था कि तू उसके प्राण पर कोई भी घात नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे यीशु का लहू मुझ पर है तो कोई भी मेरे प्राणों पर घात नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे को तकलीफ़ हुई और तकलीफ़ होने के बाद फिर से मेरी सिस्टर ने कहा MRI निकालते। और जब MRI निकाला उसके थोड़े दिनों बाद, 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आनी थी। रिपोर्ट्स में आया कि ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं। हालेलुया, वो ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये शब्द जो रेडिएशन और ये सब बोला, जो लाइलाज है, ये सब को ख़त्म किया। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं पास्टर जॉय बंतु जी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती रही। हर एक बात के लिए मैं पास्टर जी को बताती गई और वो हमेशा मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा एनकरेज करते रहे। हमेशा वो मुझे बोलते रहे, बी हील्ड, पीस बी विद यू बेटा, पीस बी विद यू। हमेशा मेरे मन में तसल्ली रही, हमेशा मेरे मन में शांति रही। परमेश्वर ने अब्राहम की ऐसे परीक्षा ली कि तो अपने बेटे की बलिदान कर। परमेश्वर ने यह कहकर अब्राहम की परीक्षा ली कि मैं यहीं पर हूँ। हालेलुया। हमारा महान परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है। जब कोई कठिन राह भी होती है वहाँ पर वो मंजिल बनकर, उस रास्ते पर वो ऐसी हरी हरी चराइयाँ बनकर हमारे साथ चलता है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया। और जब मैं मेरी रिपोर्ट्स को देखा, मेरी सिस्टर इतनी खुश हुई, मेरे दिल में भी इतनी खुशी हुई और मैंने सर को बताया। सर जॉय बंतु जी भी इतना खुश हुए और फिर वो मुझे लिखते कहते कि उन्होंने कहा
कि मैं आपको परफेक्टली देखना चाहता हूँ, और मैंने आत्मा में ये ग्रहण कर लिया कि पास्टर जॉय बंतु जी ने मुझे आत्मा में एकदम परफेक्ट देख लिया है। को भी उन सबों ने प्रेयर की, उन सबों ने मेरे लिए दिन रात परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से दुहाइयाँ मांगी कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। जो पास्टर जॉय बंतु, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आज भी एवरी डे वो मुझे बाइबल वर्स भेजते हैं और मेडिटेशन के लिए मुझे बोलते हैं, इस पे मेडिटेट करो। आगे भी वो मुझे करते रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि बोलने वाला, करवाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई। डॉक्टर को हैरान भी हो रही थी कि आखिर ये ट्यूमर गया कहाँ, अगर ये ट्यूमर था तो गया कहाँ। और डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट कराए, मेरी फुल बॉडी स्कैन कराया, मेरी हर एक नर्व के लिए, हाथों और पैरों की नर्व के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और मेरा पूरा बॉडी स्कैन कराया कि कोई कैंसर तो नहीं अंदर। पर मेरे परमेश्वर ने हर एक चीज़ में मुझे चंगाई दी, मुझे रेन्यू किया, मेरी स्ट्रेंथ को रेन्यू किया, मुझे नया किया। हालेलुया। वो मेरा खुदा है, वो मुझे बनाता है। धन्यवाद देती हूँ मैं मेरे महान जीवित परमेश्वर का, मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है, जब हम पुकारते हैं उसे, वो अनुग्रह करके हमें उत्तर देता है, जिससे हमारे लिए, हमारे बीमारियों के लिए, पीढ़ियों से आने वाले बीमारियों के लिए, श्रापों के लिए और पापों के लिए वो क्रूसित हुआ। हालेलुया। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। जब हमें कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ वो हमारे साथ रहता है। इसीलिए मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैं उसे धन्य कहूंगा। सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है जब हम प्रभु को सभा में, यानी प्रभु के कलीसिया में धन्य कहते हैं, क्योंकि हम उसे कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ हमारे होठों की बलि देते हैं। और इतना बिजी मत रहो, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है और बहुत ही नजदीक है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत और बहुत जल्दी है। ये समय प्रभु ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो बहुत टफ है। पास्टर इज अ ह्यूमन बीइंग, वो कुछ नहीं कर सकता, ना देख सकता, बट ही इज द गॉड, वो क्रिएटर है हमारा। आप कितना भी कोने में छुप क्यों न जाए, पर आप उसके सामने एकदम खुला है। और बड़े बड़े भी गिर जाएंगे, हमें खुद के लिए मालूम नहीं, हम हमारे उद्धार के लिए हम दौड़ते हैं हर रोज 3 टाइम खाना, कम से कम 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाना, चलो 2 टाइम नहीं 1 टाइम खाना हमारे लिए जैसे जरूरी है, वैसे ही हर रोज हमारे उद्धार के लिए दौड़ना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि बैप्टिज्म आपने लिया, आपको होली स्पिरिट का भी बैप्टिज्म मिल गया, आपने बहुत सारी चंगाइयां की, बहुतों के लिए प्रार्थना की, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका हृदय काउंट होता है। सच में आप तैयार हो जाइए दूसरे आगमन के लिए, कि हम रैप्चर में हम सब उसके साथ उठा लिए जाए और प्रभु को हम आमने सामने देख सके। और वो तभी हो सकता है जब आप उसके साथ खरे निकलते हैं, यानी हर मार्ग में हम उसके साथ सही रीति से दौड़ते हैं। सिर्फ हमें चंगाइयां नहीं करनी है अभी, न सिर्फ प्रार्थना करनी है, न अन्य भाषाओं में बोलना है, बट आई हैव टू डू फॉर माय ओन सैल्वेशन। हमारे खुद के उद्धार के लिए हमें दौड़ना है। और आपको अच्छा लगेगा क्या आप उठा लिए जाए, आपका बच्चा रह जाए? आपको अच्छा लगेगा आपका पति रह जाए या आपकी पत्नी रह जाए? नहीं ना, हम चाहेंगे कि हमारा पूरा परिवार उठा लिया जाए। तो क्यों ना हम गंभीर हो जाते हैं, क्यों ना हम सही रीति से प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, और क्यों ना हम गंभीर हो जाते हैं वचन में। सिर्फ वचन सुनना नहीं है, 10 पास्टर्स
बहुत सारे इवेंजलिस्ट और बहुत सारे प्रभु के दासों का वचन वो लोग बोलते रहेंगे बेचारे, लेकिन आपको काम लेना है, उसको आपको अंदर लेना है। कल मैं अपने बच्चों को बोल रही थी, बेटा मैं तुम लोग को हर सम्स करा रही है, ईच एंड एवरी सम करा रही है। आई कैन गिव यू एवरीथिंग। ओके, लाइक जैसे मम्मी देती है ना खाना, मैं खाना तुम लोग के सामने परोस के देगी, चलो खिलाएगी भी। चलो आप चू नहीं कर सकते तो उसको मैं कैसे भी टुकड़ा करके, जैसे आप सीधा ले ले वो भी कर सकती है, बट डाइजेस्ट तो आपको करना है ना। तो सच में आप तैयार हो जाइए, डाइजेस्ट कीजिए एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्ड। हालेलुया। सिर्फ पैसा काम नहीं करता, आपका दिल बहुत काम करता है। आपका दिल देने का, पैसा आपसे कोई मांगता नहीं है। अगर आप अपने भाई को सिर्फ पैसा देंगे और दिल नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं होता उसका, सच में। और अब मेरा एक ही काम है, उसके साथ जाना, क्योंकि अब मेरा ये जो शरीर है वो कुछ काम का नहीं है। वो जो विनाशी है वो अविनाशी में बदलने वाला वो खुदा है, उसके लिए मुझे तैयारी करना है। हालेलुया। मुझे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं एक जगह बैठी तो उठ नहीं सकती थी। मैंने मैं दो डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा आपका ये रहेगा ही। तीसरे डॉक्टर ने भी ऐसा कहा, आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। मैं 1 मंथ फिजियोथेरेपी की, मैंने मसाज कराई मेरे घुटनों की। मैं आपसे कहती हूँ, जब मुझे पास्टर ने बोला रेखा डिपेंड ऑन गॉड, डोंट डिपेंड ऑन एनी मैन, उसने कहा कि किसी मनुष्य पे निर्भर मत रहे, परमेश्वर पे निर्भर रहे। इस निर्णय लिया कि प्रभु मैं सिर्फ तेरे ऊपर डिपेंड रहेगी। मैंने मेरा फिजियोथेरेपी बंद किया और मैंने मसाज बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ रुका रहा प्रभु पर। और हम दोनों प्रार्थना करने लगे और सच में प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु हमारे मांगने से परे वो देता है। तो हमें अभी सिर्फ चंगाइयों के लिए रुकना नहीं है, हमें हमारे उद्धार के लिए हमें युद्ध लड़ना है, हमें उद्धार के लिए आगे बढ़ना है। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हर संकट की घड़ी में वो हमारे साथ रहता है, तब वो बहुत अच्छा है। आइए हम धन्यवाद समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। हमारे बुराई की वजह से, हमारे पापों की वजह से आपने हमारा नाश नहीं किया, बल्कि प्रभु इस संध्या के समय में प्रभु जी आपकी योजना के अनुसार आपने इस मीटिंग में हमें एकत्रित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमें प्यार करते हैं प्रभु जी, और इस पृथ्वी को निर्माण करने से पहले आपने हमें चुन लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके महिमा के लिए आपने चुना है और इस पृथ्वी पर शैतान के बुरे कामों से निकाल कर प्रभु जी पवित्र जीवन जीने के लिए आपने हमारी अगुवाई की। भाइयों ने प्रभु जी अपने जीवन के लिए गवाही दी, जो कि प्रभु आपने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। हाँ प्रभु जी, इसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी, और भी आपके विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु जी हमारे बहन को सहायता कीजिए प्रभु जी, और भी बहुत सारे लोग आपके राज में आने के लिए प्रभु जी हमारे भाई बहनों का इस्तेमाल कीजिए। केवल पास्टर का नहीं प्रभु जी, लेकिन हमारा भी काम है कि आपके लिए हम सेवा करें प्रभु जी, और सेवा करने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान दीजिए पिता। आप प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, आपके मीटिंग के लिए, आपके दास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपके पवित्र वचन को बांटते समय आपके पवित्र आत्मा से उन्हें भरिए। इस मीटिंग को हर एक के लिए आशीषित करिए पिताजी, ताकि जो सुनने वाले प्रभु वो आपके लिए आशीषित जीवन जिए। सारी विनतियां प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। God is good. परमेश्वर अच्छा है All the time He is good. और हर समय वो अच्छा है, All things works together for good those who love God. और सारी चीजें बदलाई को उत्पन्न करता है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So let's open our hearts, तो आइए हमें अपने हृदयों को खोलें, our minds. हमारे मनों को। Let's give ourselves to God, आइए हम अपने आप को परमेश्वर को दें asking God for the remedy, और परमेश्वर से हम इलाज के लिए मांगे, asking God for blessing. परमेश्वर से हम आशीष को मांगे।
Let's thank. आइए हम धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशुआ यीशु के अतुल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Truly God is good सच में परमेश्वर अच्छा है, and He is awesome, He is wonderful. वो अद्भुत है और वो अद्भुत परमेश्वर So है। we need to always depend on Him. और हमें हमेशा परमेश्वर पे निर्भर रहना We need to चाहिए always ask of Him. और उससे मांगना चाहिए, We need to hear from Him. उससे सुनना चाहिए And we need to give always glory to God and God alone. और हमेशा हमेशा के लिए महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। Glory to God in the But- highest. जो ऊंचे में परमेश्वर है उसकी महिमा हो। Amen. To wait on God. हमें परमेश्वर पर रुकना है And we need to give God the due glory. और सही महिमा हमें परमेश्वर को देना है। He is the author and finisher of our faith. वो हमारे विश्वास का रचने वाला और पूरा करने वाला है। He called us that we may pray, sit, inquire Him. उसने हमें बुलाया कि हम उसको प्रार्थना करें, उसके पास बैठे और उससे पूछे और मांगे And we may receive from Him. और उससे हम प्राप्त करें And we may brag on only one name that is above all names. और एक नाम पर हम घमंड करें, वो है केवल परमेश्वर का। There is no other name और कोई नाम नहीं above the heavens, स्वर्ग के ऊपर, beneath the earth, पृथ्वी के नीचे or anywhere else on the earth. या कहीं पर भी पृथ्वी पे Only one name. केवल एक ही नाम, That is Jesus' name. वो है यीशु का नाम। God loves you all. परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता He, है he wants us to know Him more personally. और वो बहुत अच्छी वो चाहता है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से आप पहचाने। As Lord's coming is near, और जैसे सच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, we need to sit in God's presence हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठना चाहिए and we need to inquire the Lord. और हमें प्रभु से पूछना चाहिए, Inquire the Lord. प्रभु से पूछना चाहिए, For whosoever asks, क्योंकि जो कोई मांगता है receives. वो पाता है, Whosoever knocks, जो कोई खटखटाता है for him the doors are open. उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, Whosoever seeks, जो कोई ढूंढता है he finds. उसे मिलता है। Amen. आमीन। That's why He wants us to ask Him, इसीलिए वो चाहता है कि हम उससे मांगे, inquire of Him. उससे पूछे। So today we'll look at Rebecca, आज हम रेबेक्का की ओर देखेंगे। Genesis 25th chapter and the 22nd verse. उत्पत्ति 25वां अध्याय 22वां वचन। But the children struggled together within her, and she said, "If all is well, why I am like this?" So she went to inquire of the Lord. लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। Amen. The आमीन। question is there वहाँ पर सवाल है that if all is well, why I am like this? अगर सब कुछ ठीक है तो मुझसे ऐसा क्यों? Why I am dying? मैं क्यों मर रही Why I है, am troubled? क्यों मुझे पीड़ा है। I tell you, no one can answer you. मैं आपसे कहता हूँ कोई भी आपको उसका उत्तर दे नहीं सकता, But God can answer you. पर परमेश्वर आपको उत्तर दे सकता And है surely He will answer you. और जरूर वो आपको उत्तर देगा। Call unto His name उसके नाम को पुकारो and He says, I am going to answer you. और वो कहता है कि मैं तुम्हें उत्तर Bring दूंगा। your questions to Him. अपने सवालों को उसके पास लेकर आओ, Inquire Him. उससे पूछो। For is there anything too hard for God? क्या परमेश्वर के लिए
ये कठिन है कोई क्या? चीज इतना कठिन कोई है? चीज इतना कठिन है क्या? For anything, किसी लिए भी, for any reason, कोई भी कारण क्यों for ना हो, any difficulty, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, come to God. परमेश्वर के पास आओ। When you come to God जब आप परमेश्वर के पास आते and हैं inquire of Him, और उससे आप पूछते He हैं, will give you the appropriate answer. वो आपको सही जवाब देगा। He will give you guidance. वो आपको अगुवाई He करेगा। will show you path वो आपको मार्ग दिखाएगा so clearly बहुत ही साफ रीति से that you may walk over it. कि आप उस पर चल सके। Come to Him. उसके पास He आओ, will smoothen and straighten your paths. वो आपके मार्गों को मुलायम और सीधा करेगा। 23rd verse. 23वां वचन। And the Lord said to her, Two nations are in your womb. Two people shall be separated from your body. One people shall be stronger than another, and the older shall serve the younger. तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। You know why God is telling you when you inquire of Him? आपको मालूम है आपको परमेश्वर क्यों बोलता है जब आप उससे पूछते हैं? You may trust on Him, उस पर भरोसा करें, that you may ask continuous guidance from Him, लगातार उससे आप अगुवाई मांगे, that you may be victorious in your path. कि आप अपने मार्ग में विजयशाली बने। He wants you to agree with His plans. वो चाहता है कि आप उसके योजनाओं से सहमत हो For in जाएं। Jeremiah 29:11 He says, I have the plans. क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, He is having the plans. उसके पास योजनाएं हैं। You should not go here and there. आप इधर उधर मत दौड़िए, Have a relationship with God. परमेश्वर के साथ संबंध जोड़िए, Strong relationship with God. मजबूत रिश्ता जोड़िए, Come to Him. उसके पास आइए Inquire Him. और उससे पूछिए। And when you inquire Him, और जब आप उससे पूछते हैं, He will answer you. वो आपको उत्तर देगा, He will speak with you. वो आपसे बातें करेगा He will open the doors that no man can close. और वो उन दरवाजों को खोलेगा जिसको कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। God told her, परमेश्वर ने उससे कहा there are two nations in your womb. कि दो राष्ट्र तेरे गर्भ में हैं, Two peoples shall separate from your body. दो लोग तेरे शरीर से अलग होंगे, The older shall serve the younger. बड़ा बेटा छोटे का अधीन रहेगा। God is showing you that you may move in that direction. परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप उसके अगुवाई में चले। Whenever उसकी God shows you something, He shows that you may move in that direction. जब कभी परमेश्वर आपको दिशा दिखाता है तो वो चाहता है कि आप उसकी अगुवाई के अनुसार उस दिशा में चले। He wants you to sit personally at His feet and learn from Him what He is saying. चाहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चरणों में बैठे और सुने कि वो क्या कह रहा है आपसे। Ephesians 3:21 verse. खलास पत्र 3 अध्याय 21 वचन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। You may give glory to God every time. हर समय आप परमेश्वर को महिमा दे। When you give glory to God, जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं you will be blessed. तो आप आशीषित हो We जाते can हैं। give nothing to God. हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे We need to सकते। prepare a heart that we should give glory to God. हम अपने हृदयों को बनाए कि हम परमेश्वर को महिमा दे। Rebecca inquired from God रेबेका ने परमेश्वर से पूछा and she decided to give glory to God. और उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर की मैं महिमा She करूंगी। said, I am going to agree with God's plan. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के योजना से सहमत हो I जाऊंगी। believe that many a times Rebecca shared with Isaac about God's plan towards both the children. मैं विश्वास करता हूँ कि रेबेका ने बहुतों बार इसहाक से उसके दोनों बेटों की योजना के बारे में जो परमेश्वर की है बताया होगा। She shared many a times her feelings.
बहुतों बार उसने अपने भावनाओं को प्रकट किया She होगा told everything what she inquired from the God. और उसने सब कुछ बताया जो परमेश्वर ने उससे कहा। So he needed to sit at God's presence and inquire from the God. तो उसको जरूरी था कि परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर से पूछे And he may ask from God और परमेश्वर से मांगे that what I should do now. कि अब मैं क्या करूं। But Isaac पर इसहाक did ask God इसहाक ने परमेश्वर से नहीं पूछा because he knew very well क्योंकि वो अच्छी रीति से जानता था that God is intended to bless Jacob. कि परमेश्वर चाहता है कि याकूब को आशीष दे। God is having a great plan. परमेश्वर को बहुत बड़ी योजना I है see the outward appearance. और मैं जो है बाहरी बातों को देखता हूँ I smell the eldest son's smell like an aroma. और मुझे मेरे बड़े बेटे की सुगंध आती है। Aroma, बहुत ही खुशबू आती बहुत ही है, अच्छा। अच्छी खुशबू आती है I touch him and I feel close. और जब मैं उसे छूता हूँ तो मैं उसके ऐसा लगता है मैं नजदीक हूँ He blesses me with my loved meal. और वो मुझे मेरे अच्छे खाने से आशीष In करता all है। that thoughts, उसके इन सारे विचारों he में forgot the plan of God. वो परमेश्वर के योजना को भूल गया He neglected the message which God gave to Rebecca, his wife, when she inquired of it. और वो भूल गया जो परमेश्वर ने रेबेका से बातें की थी उस बातों में वो भूल गया। उस परमेश्वर ने जो बातें रेबेका से बातें की उन बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। Why? क्यों? Because he loved food. क्योंकि उसे खाना अच्छा लगता Taste था, in the mouth. स्वाद जो मुख में आता है, Appetite for stomach. पेट के लिए भूख। We need to be very conscious. हमें बहुत ही ध्यान देना है What I teach my children. मेरे बच्चों को मैं क्या सिखा रहा How हूँ, I behave in the church. कलिसिया में मैं कैसे रहता हूँ, How I act in the church. कलिसिया में मैं कैसे काम करता How हूँ, I act in the family. मैं परिवार में कैसे काम करता हूँ। Whatsoever you do, आप जो कुछ करते हो it is showing something to someone that I am that one. वो किसी और को दिखाता है कि मैं वो जो हूँ Yeah, you can't show something else what you're not. और आप दूसरे को दिखा नहीं सकते जो आप नहीं है। Yes, you can. You will show that only what you are. जो कुछ आप है वही आप दिखा सकते हैं दूसरे को। So if you want to improve your life, you need to have a counsel from God. अगर आप अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से मांगे, उससे सलाह मांगे। If you want to teach something good to your children, your church, you need to sit at God's presence. अगर आप परमेश्वर की कलीसिया को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपको जरूरी है परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, Inquire of Him. उससे पूछना, Ask of Him. उससे मांगना। As Rekha said, you should not alone go to the heaven. You should have a desire that I and my family will go to the heaven. जैसे रेखा ने कहा कि आप ये इच्छा मत रखो कि मैं स्वर्ग में अकेला जाऊं, पर ये इच्छा रखो कि मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु के साथ I जाए। and my neighbors will go up to the heaven. मैं और मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ जाए। I will tell to everyone that Messiah is coming soon. और मैं सबको बताऊंगा कि मसीहा जल्द आने वाला When है। you can declare about Lord's coming. कब आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताएंगे? If दूसरों you को? believe that Lord is coming, then only you can declare about His अगर coming. आप विश्वास करते हैं तभी ही आप घोषणा करेंगे इस बात की। If you believe Lord's coming, then only you can declare about His coming. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करते हैं तो जरूर आप दूसरों को बताएंगे। If you believe, then only you can declare. अगर विश्वास करते हैं तभी आप घोषणा करेंगे, Or else you can't declare. नहीं तो आप नहीं करेंगे। You need to believe that Jesus is coming soon. आपको ये विश्वास रखना जरूरी है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने We have वाला है। learned that we are standing at the beginning
beginning of the end. और हमने सीखा है कि हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। Jesus is going to come soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है He is going to appear in the clouds of glory very soon. और महिमा के बादलों में वो जल्द दिखाई देगा। You should be passionate to inquire God. आप चाहत रखना चाहिए परमेश्वर से पूछने के And लिए। after inquiring from Him, you should be more desirous and passionate to do the will of God. और पूछने के बाद आप उस योजना में सहमत होकर पूरी तरह से उस पर काम करने के लिए तैयार होने Not only चाहिए। just hear God, केवल सुनना नहीं है परमेश्वर because का, James says, क्योंकि याकूब कहता after है hearing the word of God, if you will not do it, you will be like a man who is going into the mirror and looking at your face and doing nothing. और याकूब ने कहा कि परमेश्वर के वचन को सुनकर अगर आप उसका पालन नहीं करते, उस पे चलते नहीं, तो आप उस व्यक्ति के जैसे हैं जैसे आप आईने में देखते हैं पर अपने आप को संवारते नहीं। You don't correct yourself. आप अपने आप को सुधारते नहीं। Jesus speaks with you that you may correct your life. यीशु मसीह आपसे बातें करता है कि आप अपने जीवन को सुधारिए। God speaks with you that you may no more walk in your own direction, own ways, but you may walk according to the pattern of Lord. परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपने तौर तरीके में मत चलो पर परमेश्वर के तौर तरीके में चलो। God speaks with you. परमेश्वर आपसे बातें करता Whenever है। you inquire, God shows you जब कभी आप पूछते हैं तो परमेश्वर दिखाता है that you may no longer conform to the pattern of this world. कि इस दुनिया के तौर तरीके में तुम मत चलो That you may no longer go after your own passions, और खुद की चाहतों के पीछे मत भागो, but you turn towards God. पर परमेश्वर की ओर भागो। Keep first thing in your mind, I need to do the desire of God. और अपने मन में ये इच्छा रखो कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना Let's है। open Matthew 22nd chapter 37 verse. मत्ती 22 अध्याय 37 वर्ष। Jesus said, यीशु ने कहा, Thou shalt love thy God with thy whole heart, with thy whole soul, with thy whole mind. तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Luke 10:27. लूका 10:27 में Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। You need to love God. आपको परमेश्वर से प्रेम रखना If है। you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं then you will fulfill the God's desire. तभी आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते If you हैं। don't love Him, अगर आप उसे प्रेम नहीं you can't करते fulfill His desire. तो आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं To fulfill करते। His desire, you need to love Him. उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको उससे प्रेम करना We है। can see that Rebecca ran हमने देखा कि रेबेका जो है दौड़ी, when she came to know that her husband is going to bless Esau. जब उसे मालूम पड़ा कि उसका पति ईसाव को आशीष दे रहा है, Then she called her son Jacob तब उसने अपने बेटे याकूब को बुलाया and she shared with him. और उससे मांगा। She told him, Your father is going to bless your brother in the name of the Lord. याकूब को बुलाया और उसे कहा कि तेरा जो पिता है वो ईसाव को आशीष देने वाला है In the name of the Lord. प्रभु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। You know, when you read it, जब आप पढ़ते from हैं 27th 5th verse to 13th verse, 27वां अध्याय उसका 5 से 13 वचन, then you will find that there is no other name you can bless anyone. तब आपको मालूम पड़ता है कि और किसी नाम से नहीं कि प्रभु के नाम से आप किसी को आशीष दे सकते There is no other name where you can stand. और कोई नाम नहीं जिसके सहारे आप खड़ा हो सकते If you want to bless someone, there is only one name. अगर आप किसी को आशीष देना चाहते हैं तो केवल एक ही नाम That है। is the name of Jesus. वो नाम है यीशु Today we मसीह का sang नाम। and we worshiped in Romans 13th chapter and the 13th verse. रोमियो का पत्र 13 अध्याय 13 वचन। You are called in the liberty. आप जो है वो आजादी में बुलाए गए हो, So don't give any provision to the flesh.
तो शरीर को कोई वसीला मत दो Make not any occasion for the flesh. और शरीर के लिए कोई मौका मत ढूंढो। But you know, you need to serve one another in charity. पर आप जानते हैं आपको एक दूसरे की सेवा करनी है प्रेम में, You know, give no occasion to the flesh. और शरीर को कोई मौका न दो। Isaac was giving an occasion to the flesh to bless Esau, इसहाक शरीर को मौका दे रहा था to bless his son Esau. अपने पुत्र ईसाव को आशीष देने के But लिए, Rebecca intervened. पर रिबेका ने मध्यस्थी की। Whatever it may cost you, उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न देना पड़े, आपको आपको give it. दीजिए। Whatever it may cost you, उसके लिए आपको कुछ भी कीमत even क्यों your न देनी own पड़े। life, आपका खुद का जीवन to क्यों न हो, fulfill God's desire. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए Do it. तो दे दीजिए। Don't give an occasion to the flesh. शरीर को मौका मत दो, Don't give a time to the flesh. शरीर को समय न दो। If you will give a chance to the flesh, अगर आप अपने शरीर को मौका देते you हैं can't fulfill God's desire. तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। Romans 13:13 says, let us walk honestly as in the day. और रोमियो का पत्र 13:13 कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल You चले। need to walk honestly with God. परमेश्वर के साथ आप वफादारी से Why चलें। God blessed you? परमेश्वर ने आपको क्यों आशीष Why दी? God moved you from place to place? और परमेश्वर आपको एक जगह से दूसरी जगह क्यों लेकर How जाता faithful है? He was in everywhere you put your tent. और जहाँ कहीं आपने अपने तंबू को डाला वहाँ पर वो विश्वसनीय क्यों रहा? Every time He showed Himself, I am Jehovah Jireh. और हर समय उसने बताया कि मैं यहोवा एरे When your हूँ। father went to sacrifice you before God, God replaced you with a lamb. और जब आपका पिता बलिदान देने जा रहा था आपका, तब परमेश्वर ने आपके जगह पर मेमना दिया। You need to believe that Jehovah Jireh lived. आपको विश्वास करना है कि यहोवा एरे जीवित You need to है। that all powerful and all powerful God lived. आपको ये विश्वास करना है कि सर्व सामर्थी परमेश्वर जीवित है He is enough to bless your children. और वो आपके बच्चों को आशीष देने के He लिए is काफी है। Enough to bless you. वो काफी है आपको आशीष You देने should not के take लिए। any shortcuts. आप कोई शॉर्टकट्स लेना नहीं You don't need चाहिए। to depend on flesh. आपको शरीर पर निर्भर नहीं You रहना should not चाहिए give the occasion to the flesh. और शरीर को कोई मौका नहीं देना Not चाहिए। to be in a chambering. Not to be in impurities. Not to be in contention and envy. Not to be in rioting and drunkenness. न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाक में। You need to give yourself totally to God. आपको पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपना है अपने 14th आप verse को। says, but you put on Lord Jesus Christ. 14वां वचन कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो Make no provision for the flesh. और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत If you करो। give the provision for the flesh, you will miss God's plan. अगर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय निकालेंगे तो आप परमेश्वर को मिस कर You डालेंगे। can't do God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर Knowing पाएंगे। God's will is not a great thing. और परमेश्वर की इच्छा जानना बड़ी बात नहीं है। Many people knows God's will. बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते But हैं, how many turned to do His will? पर कितने सारे जो हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में Many जाते हैं। prophesy Jesus is coming. बहुत सारे भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। Who is going to stay? कौन ठहर पाएगा? Who is going to make himself firm? कौन अपने आप को खड़ा कर पाएगा? One father called to one son एक पिता ने अपने एक बेटे को बुलाया, and told him, son, उससे कहा, हे पुत्र, go to the field today. आज तू खेत में जा। And he said, Dad, I can't go. You know that I'm busy today. I'm going with my friends. उसने कहा, पिताजी आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा He रहा हूँ। turned to his youngest son और वो अपने छोटे बेटे की ओर मुड़ा। and he told, son, उसने कहा, हे बेटा, today your elder brother is very busy. आज तेरा बड़ा भाई बहुत ही बिजी है, Please go to the field. आज तू खेत में जा। He said, Father, don't care. I'm going today.
उसने कहा चिंता मत करो मैं आज जा रहा हूँ। And और the one who promised didn't went. जिसने वायदा किया वो गया नहीं, But the one who didn't promise, पर जो दूसरा था जिसने वायदा नहीं किया he वो came to himself. वो अपने आप पे में He आया। said, I should go and help my father. उसने सोचा कि मैं जाऊं और मेरे पिता को मदद करूं, And he went to the field. और वो खेत में गया। Are you hearing God? क्या आप परमेश्वर को सुन Are रहे you हैं? inquiring God? क्या आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं? Prayer is good. प्रार्थना करना बहुत अच्छा Better है, than prayer is inquire God before you do anything. और प्रार्थना से बढ़कर जो है परमेश्वर से पूछना जो कुछ आप कर रहे हो। Oh, inquire God before you do anything. कुछ करने से पहले परमेश्वर से पूछो, Take his suggestion. उसकी सलाह Take it मांगो, guidance. उसके अगुवाई को Do मांगो, according to his pattern. उसके तरीके के अनुसार Lean करो। not your own understanding, अपने खुद के समझ का सहारा मत लो, but depend on God for everything. पर हर चीज का के लिए परमेश्वर पे You रुके might have रहो। told, I will not go. हो सकता है आपने कहा होगा मैं नहीं But जाऊंगा, go to his field. पर उसके खेत में जाओ। You might have told, I will go. आपने कहा होगा मैं जाऊंगा, But you may be delaying. पर आप जो है देरी कर रहे You may be हैं, saying, it's not my business. और आप सोच रहे हैं ये मेरा काम But नहीं today है। God is speaking with you. पर आज परमेश्वर आपसे बातें कर If रहा you है। fail not, अगर आप हार न जाए you are not going to lose your reward. तो आप अपने प्रतिफल को नहीं They खोएंगे। kept a great reward for you. उसने आपके लिए बहुत बड़े प्रतिफल Not रखे। only just inquire God, न केवल परमेश्वर से पूछे, but follow his directions. पर उसके अगुवाई में चले। Genesis 27:7, when we'll read, we can understand there is only in the name of the Lord there is a blessing. 27:7 जब हम उत्पत्ति का पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आशीर्वाद सिर्फ परमेश्वर के नाम में है और किसी नाम में Blessing नहीं। comes in the sight of God. परमेश्वर के दृष्टि में ही आशीष So मिलती है। if you want to bless someone, अगर आप किसी को आशीष करना if चाहते your हैं, heart is intended to bless someone, अगर आपका हृदय किसी को आशीष देना चाहता है, push them into the presence of God. उन्हें आप परमेश्वर की उपस्थिति में डाल Bring them to दीजिए। the Lord. उन्हें परमेश्वर के सामने लाइए। Guide them to the Lord. परमेश्वर के लिए अगुवाई कीजिए। There is a mighty blessing in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत बड़ा When सामर्थ्य you है। open Hebrew 3rd chapter and the 7th verse, जब आप इब्रानी 3रा अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, therefore as the Holy Spirit speaks with you, अतः जैसा पवित्र आत्मा तुझसे कहता है, today if you shall hear his voice, अगर आज तो उसके शब्द को सुने, do not harden your heart अपने मन को कठोर मत करे, as your forefathers hardened their heart. जैसे तेरे अब्बा दादाओं ने अपने हृदय को कठोर किया They moved against your God in the wilderness. और वो रेगिस्तान में परमेश्वर के विरुद्ध चले, Where they tested and tried God. जहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली। This is a testing of God. ये जो है परमेश्वर को परीक्षा लेना God has है, appointed Isaac to bless Jacob. और परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि वो याकूब को आशीष देगा, But he's trying to bless Esau. पर जो इसाक है वो उसके बड़े बेटे को एसाव को आशीष देना चाहता है। Don't turn according to your appetite. अपने खुद के भूख के अनुसार मत चलो, Harden not your heart. अपने हृदय को कठोर मत करो। Whatsoever God is speaking clearly, do that. जो कुछ परमेश्वर आपसे बातें करता है वो करो। God is not calling us to raise up our ministries और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाता कि हम खुद की सेवकाई को खड़ा with our करें own personal intentions. अपने खुद के विचारों के As अनुसार। Rekha said, he is not asking you money. और जैसे रेखा ने कहा वो आपसे पैसा नहीं He is मांगता, asking you. वो आपको मांगता Are you है। ready to obey him? क्या आप तैयार हैं उसकी आज्ञा का पालन Are करने you के ready to लिए? hear this voice? क्या आप तैयार हैं उसकी आवाज को If सुनने today के you लिए? hear the voice of the Holy Spirit, अगर आप तैयार हैं पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने के harden लिए not your hearts. और अपने मन को कठोर Do न not करें, test your God. अपने परमेश्वर की
परीक्षा Do न not लें try to try him, और परमेश्वर को ट्राई न करें, but try to do your business for which God called you. पर वो कोशिश करें उस व्यापार को करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया For है। that, if you might give your own life also, और उसके लिए अगर आपको अपनी जान भी गंवानी as पड़े, Rebecca, जैसे रेबेका, her name means binding. उसका रेबेका मतलब जोड़ना, She bound herself with the promise of God. उसने अपने आप को परमेश्वर के वायदे के अनुसार बांध She दिया, bound herself with God. उसने परमेश्वर के साथ अपने आप को She बांध was दिया। not ready to do anything of the world. वो दुनिया का कुछ भी करने के लिए तैयार She नहीं थी, didn't give herself for appetite. उसने अपने आप को खाने के लिए दिया नहीं. She gave herself for the will of God. उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे She दिया, didn't give herself for food, उसने अपने आप को खाने के लिए नहीं but दिया, she gave herself for the word of God. उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए दे The दिया। older shall serve the youngest. जो बड़ा है छोटे की सेवा She करेगा, kept in her heart. उसने अपने हृदय में रखा, As Mother Mary kept everything in her heart. जैसे माता मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ रखा, And she served Jesus, her Messiah. और उसने अपने यीशु मसीहा की सेवा की, She obeyed him in all things. और सारी चीजों में उसने उसकी आज्ञा She पालन herself की, became his disciple. और वो खुद यीशु मसीह की शिष्या बन She गई। learned from him उसने उससे सीखा that he is the answer for every question in her life. कि वही हर एक सवाल का जो उसके जीवन में सवाल है उसका जवाब वही That's है। why in the marriage of Cana, when she was in the trouble, she didn't went anywhere, but she went to Jesus. इसीलिए कनान के विवाह में जब वो वहाँ पर समस्या आ गई तो यहाँ वहाँ उसने नहीं देखा, केवल वो यीशु के पास गई, She asked of him. उसने उससे मांगा, She made her laborers ready to serve whatsoever Jesus is going to say. और जो भी मजदूर वहाँ पे थे उन्हें ये कहा कि यीशु मसीह जो कहता है वो करो। If he's told you to put waters into the jar, put it. अगर वो तुम्हें कहता है कि पानी डालो उन मटकों में तो पानी डालो। Don't ask any other question. और कोई सवाल मत पूछो। Harden not your hearts. अपने हृदय को कठोर मत Move बनाओ। not with you according to your own mind. अपने खुद के मन से मत चलो। Ask of God. परमेश्वर से मांगो। Do according to it. उसके अनुसार करो। Do not delay in doing what is required. और जो चाहिए उसको करने में देरी मत Do करो। not turn from it to right or left. उससे दाएं और बाएं मत मुड़ो। But keep your way before God. पर अपने मार्ग को परमेश्वर के सामने रखो। 10th verse says, 10वां वचन कहता है, they are the people whose hearts go astray. 40 years they have tested me. 40 years they made me angry. 40 साल उन्होंने मेरी परीक्षा ली, 40 साल उन्होंने मुझे क्रोध दिलाया। And I said, और मैंने कहा, they are the people whose heart go astray. इनके मन सदा भटकते रहते Yes, हैं। word of God says in Jeremiah 17, heart is deceitful above all things. इसीलिए इर्मिया 17 में कहा गया है कि जो हृदय है वो फंसाने वाला है। फंसाने वाला है। Oh, what a disease that heart got. ओ हृदय को ऐसी बीमारी कैसे लगी? That's why he says these people they go astray. इसीलिए वो कहता है कि ये लोग भटकते रहते Their हैं। hearts go astray. उनके हृदय भटकते हैं। And they have not known my ways. और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। They know God's way. वो परमेश्वर के हृदय को मार्गों को जानते हैं। But still they don't know God's way. पर फिर भी वो परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानते। If you know something means you will do it. अगर आप किसी बात को जानते हैं तो वो आप करेंगे। If you know and if you don't do means you don't know it. अगर आप जानकर नहीं करते इसका मतलब है आप जानते ही नहीं हो. You don't know to do the God's desire. और आप नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। Rebecca, she knew, she inquired God. वो जानती थी और परमेश्वर से उसने पूछा। And she bound herself with the will of God. और परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को उसने बांध Today, दिया। if you shall hear His
voice, अगर आज आप उसकी आवाज को सुनते do हैं not harden your hearts. तो अपने हृदयों को कठोर मत कीजिए। 12th verse. 12 वचन, Take heed, brethren, हे भाइयों चौकस रहो, lest perhaps there be any one of you an evil heart of unbelief to depart from the living God. तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। Why? क्यों? What is making you to run away from God's desire? ऐसा क्या है जो आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर भगाता Why the है? heart of unbelief? और अविश्वास का हृदय क्यों? Why can't you trust God? क्यों नहीं आप परमेश्वर पे भरोसा Why can't you करते? believe beyond your vision? आपके दृष्टि के परे आप विश्वास क्यों नहीं Why can't करते? you trust Him in your obedience? और आपके आज्ञा पालन में आप भरोसा क्यों नहीं That's करते? why He इस पर? says in 3rd chapter and 12th verse, इसीलिए Hebrew, इब्रानी 3 अध्याय 12 वचन में वो कहता है, take heed, brethren, हे भाइयों चौकस रहो, lest perhaps there be any one of you evil heart of unbelief to depart from God, from the living God. तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। Oh, those who have ears, let him hear. जिनके पास कान है वो परमेश्वर का सुने, Those who have heart, let them understand जिनको हृदय है वो समझे what the Lord is saying, कि परमेश्वर क्या कह what रहा He है wants to do with you. और वो क्या चाहता है आपसे करना। If you have heart to know, अगर आपको हृदय है जानने के if you know लिए, what God really deeply desires from you, अगर आप चाहते हैं कि जाने आपके परमेश्वर आपसे क्या इच्छा रखता then you है, will move towards that desire तो आप उस इच्छा की ओर दौड़ेंगे, to accomplish that desire of उस God. इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने Moses के was लिए। so much mindful of God. मूसा इतना उसका मन भरा था परमेश्वर से, He was so much desirous to do God's will. और उसको इतना इच्छा थी कि प्रभु का काम करे। In 32 of 32 in Exodus he said, निर्गमन 32 में वो कहता है, Oh God, हे what परमेश्वर, a great sin these people have committed. इन लोगों ने क्या पाप किया है। They have made gods of gold for themselves. उन्होंने अपने लिए सोने का मूर्ति बनाया है। In 32 he said, 32 में Yet से- now, फिर फिर भी भी, if you would only forgive their sins, अगर तू उनका पाप क्षमा करे, or strike me out of thy book that thou hast written. नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। Glory to God. परमेश्वर को महिमा Rebecca मिले। determined to do God's will. रेबेका ने निर्णय लिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने She के लिए। inquired of the Lord. उसने प्रभु से पूछा। Whenever you speak with God, जब कभी भी आप परमेश्वर से पूछते let हैं, your ear and heart hear properly. आपके कान और आपका हृदय सही रीति से For सुने। God never does mistake. क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। God is not a man to lie. और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is neither a son of man to repent. नहीं वो मनुष्य का पुत्र है कि पश्चाताप करे। All his words are A and Amen. और उसके सारे वचन हाँ और आमीन है। All his promises are A and Amen. उसके सभी वायदे हाँ और आमीन है। He never altered this word because he has mistaken. और वो अपने शब्दों को वचनों को कभी भी बदलता नहीं। क्योंकि ये सोचकर कि वो गलत हो गया है. He is God. वो परमेश्वर है। His word is A and Amen. उसका वचन हाँ और आमीन है। Let's open Galatians 1st chapter. गलीती and का 8th verse. पत्र पहला अध्याय 8वां वचन। But though we or angel from heaven preach gospel besides that which we have preached to you, let it be accursed. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमसे को सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। As we said before, so now I say again, if anyone preach to you a gospel besides that which we have received, let him be accursed. जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और
सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। Don't alter his word. उसके वचन को बदले नहीं। Don't try to change according to your own mean motives. अपने खुद के स्वार्थी मकसद के कारण आप परमेश्वर के वचनों को नहीं बदलिए। Wait on God. परमेश्वर पर रुके रहे। Inquire from Him. परमेश्वर से पूछे। Do what He says. और वही करे जो वो कहता है। Cursed is he if he preaches another Jesus. वो श्रापित है जो दूसरे यीशु का प्रचार करता Cursed है। is he if anyone who preaches another Jesus. वो श्रापित है जो कोई दूसरे यीशु के बारे में प्रचार करे। Be firm to do the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने Let's का open- पक्का निर्णय ले। Let's open 4th chapter and 18th verse. चौथा अध्याय 18 वचन। Be zealous for what is good in all good things always. भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। Always do good. हमेशा अच्छा करो। Always do good. हमेशा अच्छा करो। 19th verse says, My little children of whom I am in labor again until Christ is formed in you. हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। You know, when you do good, it serves as a noble purpose. अगर आप अच्छा करते हैं तो वो अच्छे मकसद के लिए करते हैं। Do you know what is a labor pain? आपको मालूम है जच्चा की पीड़ाएं क्या Ask the होती है? woman who gave a birth to a child. उस स्त्री से पूछो जिसने बालक को जन्म दिया है। Cares for them. उसके लिए वो संभालती है। And she goes to the birth bank to deliver them in a safe place. और वो उसे उस जच्चा की पीड़ा में से गुजरती है जब तक बालक सुरक्षित रूप से सुरक्षित स्थान पर जन्म न ले। In the same way, उसी रीति से are you struggling for that? क्या आप उसके लिए कोशिश कर For your कष्ट own कर रहे हैं? family. आपके खुद के परिवार I के tell लिए? you again, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, as you sow, so shall you reap. जो आप बोएंगे वही काटेंगे। So as Paul did, जैसे पौलुस ने किया that Christ be formed in the Galatians church. कि क्रिस्त गलतियों के कलीसिया में दिखाई दे दिखाई दे। in each and every person. हर एक व्यक्ति में So as I myself is doing for the church, जैसे मैं खुद कलीसिया के लिए कर रहा हूँ, till the Christ is formed in you, जब तक यीशु मसीह आप में दिखाई न till दे, Jesus is seen in you, जब तक यीशु मसीह आप में दिखाई न दे, I go through the prayers and labor pain. मैं उस जच्चा की पीड़ा में जाता हूँ। God wants that we should adapt that pain of labor pain, that Christ be formed in every person in the church. यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस जच्चा की पीड़ा में जाए जब तक हर एक प्रभु यीशु मसीह का रूप न धारण। So same way I am making my mind to prepare, go into that birth pangs for each and तो every one मैं of you. अपने आप के अपने मन को तैयार कर रहा हूँ उस जच्चा के पीड़ाओं में जाने के That लिए Christ be formed in you. कि क्रिस्त आप में दिखाई That दे, everyone may have the same desire, हर एक को एक ही इच्छा हो, same goal, एक मकसद, to preach Christ until He comes, क्रिस्त को प्रचार करते रहे जब तक वो फिर से to न आए, live for His purpose until He comes, उसके मकसद के लिए जिए जब तक वो फिर से न आए, to be goal oriented, to do the purpose of God. और मकसद को पाने के लिए मकसद को पकड़े हुए रहे जब तक कि मसीह बादलों में ना आए. God wants you to be concerned of His mind. परमेश्वर चाहता है कि आप जो है परमेश्वर के मन को पहचाने। Don't move with your own passions. अपने खुद की चाहतों के अनुसार मत Don't चलिए, go after your own lusts, अपने खुद की वासना। वासना के लिए मत चले, but take in your mind. पर अपने मन में ले ले। Romans 8:13. रोमियो का पत्र 8:13। For if you live according to the flesh, you shall die. But if you, by the Spirit, you mortify the deeds of flesh, you shall live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Destroy the works of flesh with the power of Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस शरीर के कामों को नाश करो। For that purpose God is calling you. उसी मकसद से परमेश्वर आपको बुला रहा है। Destroy the works of the flesh. शरीर के कामों को नाश करो। Let's read 4th verse. चौथा वचन, That the justification of the law might be fulfilled in us who walks not according to the flesh but according to the Spirit. इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। God is calling you to walk according to the Spirit. परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। Rebecca set her mind रेबेका ने अपने मन को बना लिया on the Spirit of God परमेश्वर की आत्मा के अनुसार to move according to the Spirit, और आत्मा के अनुसार to चलने fulfill the के लिए desire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करने 5th के verse लिए। says, for they that are according to the flesh mind the things that are of the flesh, but they that are according to the Spirit mind the things that are of the Spirit. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन। आपका हृदय आप कहाँ पर लगाते हैं? Where you're looking at? कहाँ पर आप देख रहे हैं? God has called you for the purpose. परमेश्वर ने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है। For they that move according to the flesh, they mind the things of flesh. But they are of according to the Spirit, they mind the things of the Spirit. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते Put हैं। your mind on God. अपने मन को परमेश्वर पर Put लगाओ। your mind on His will and His desire. अपने मन को उसकी इच्छा के अनुसार Put दे your दो। mind on the Spirit of God. अपने मन को परमेश्वर के लिए दे दो। What He is saying to you. आपसे वो क्या कहता है? 6th verse. छठवां For the वचन। wisdom of the flesh is death, but the wisdom of the Spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। And she put her mind on God. उसने अपने मन को परमेश्वर पे When लगाया। her son said, जब उसके बेटे ने कहा, my brother is full of hair. मेरे भाई के बाजुओं में पूरे बाल हैं। But I am here going without hair. पर मैं तो Smooth. बालों के बिना जा रहा हूँ। And my father will come to know and he is going to curse me. और मेरा पिताजी जान जाएगा और मुझे श्राप देगा। And Rebecca replied, रेबेका ने let कहा, curse be upon me. वो श्राप मुझ पर आ जा। Are you ready to stand what you inquired for? जिसके लिए आपने पूछा उसके लिए क्या रुके रहने Are के you लिए ready to तैयार है? stand and look at him क्या आप तैयार है उसके ऊपर देखने के लिए? and move not according to the wisdom of flesh, और शरीर के समझ के अनुसार न चले and walk according to the wisdom of Spirit? और आत्मा के ज्ञान के अनुसार चले। 7th verse says, because the wisdom of flesh is enemy to God, for it is not subjected to the law of God, neither can it be. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। 1 Timothy 1st chapter and 18th verse. पहला तिमोथी पहला अध्याय और 18 वचन। This precept I command to thee, O son my Timothy, according to the prophecies going before to thee on thee, that thou wart in them a good warfare. हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। Yes, church, I pray for the same thing for you. हे कलीसिया, मैं यही प्रार्थना आपके लिए भी करता हूँ। Don't move according to the wisdom of flesh. शरीर के बुद्धि के अनुसार मत चलिए, But move according to the wisdom of Spirit. पर आत्मा के बुद्धि के अनुसार चलिए Move according to its desires, और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार that you may चलिए wage a good warfare. कि अच्छा युद्ध लड़े Not to wage a war where you will be a loser. और ऐसी लड़ाई न लड़े जहाँ पर आप हार जाए। Isaac इसहाक was doing an error.
गलती कर रहा था। रेबेका she said, whatever it may cost, उसने कहा इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े, I'm going to go do it. मैं वो पूरा करूंगी। Church, कलीसिया, be bound with God. परमेश्वर के साथ बन जाओ, Be Rebecca. रेबेका के जैसा हो जाओ। Be bound yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के साथ बांध Be दो। bound with His passions. उसके चाहत के साथ बंध जाओ। As we are standing in the end of the end days, जैसे हम अंत के अंतिम दिनों में हैं, as we are there, और जैसे हम वहाँ पर हैं, and if you don't want to fail, अगर आप हारना नहीं चाहते, then fulfill the desire of Spirit. तो पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करो। Fulfill the passion of the Spirit आत्मा के चाहत को पूरा करो। to move according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, Fulfill the desire of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा Should करते we close हुए, our eyes क्यों न हम अपनी आंखों को and बंद करें, say unto Him, उससे कहें, Lord, I want to fulfill your desire. प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। I will not only just pray, मैं सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करूँगा, I will not only just inquire, न सिर्फ मैं पूछूंगा, but Father, पर हे पिता, whatever you will say, जो कुछ तू कहेगा, whatever you will guide, जो कुछ तू मुझे गाइड करेगा, I am going to do it, मैं पूरा करूँगा। not with the passions and lusts of my flesh, मेरे शरीर की वासनाओं से नहीं, but according to the desire of the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा की इच्छा से I will give myself मैं अपने आप को दे दूंगा to fulfill your desire. तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। Father, I thank you पिताजी मैं धन्यवाद करता for हूँ your God who speaks. क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो बातें करता है। Thank you for speaking with me. धन्यवाद करते हैं मुझसे बातें करने के We लिए। thank you, Father. धन्यवाद करते पिताजी, We love you. तुझसे प्रेम करते हैं। If you have not heard God's voice, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, then you can sit in His presence तो आप उसकी उपस्थिति में बैठ सकते and हैं you can ask. और मांग सकते हैं। He is going to answer you. वो आपको उत्तर देगा, He is going to answer you. वो आपको उत्तर देगा। Call unto Him. उसे पुकारे, Raise your voice unto Him. अपनी आवाज़ों को उसके और लगाए। I'm not going to fulfill my lusts. मैं मेरी वासना को पूरा नहीं करूँगा I will not go after my belly. और मेरे भूख के लिए, मेरे खाने के पेट के पीछे नहीं जाऊँगा। Should we raise a hand? क्यों न हमारे हाथों को उठाए For your glory, तेरी महिमा के लिए। I will do anything. मैं कुछ भी करूँगा तुझे देखने के लिए और तुझे मेरा राजा जानकर मैं रहना चाहता हूँ जहाँ पर तू है। मैं होना चाहता हूँ वहाँ पर जहाँ पर तू है। I gotta be where you are. तेरी महिमा के लिए मैं कुछ भी करूँगा तुझे देखने के लिए, तुझे मेरा राजा जानकर पकड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ वहाँ पर रहना जहाँ पर We speak your blessing on every member of Lord's body. और हम प्रभु यीशु मसीह के देह के हर अंग पर तेरी आशीष को कहते हैं। Every person who is present here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, everyone, will receive your fullness. वो हर एक तेरी परिपूर्णता को पाए। Let them lack no good. उन्हें कोई अच्छी भली बात की घटी ना हो। If at all any weakness is there, अगर कोई कमजोरी है तो today in Jesus' name we rebuke it.
आज यीशु के नाम में हम डांटते हैं। Every sickness we rebuke you. हर बीमारी तुझे हम डांटते हैं। Every hurdles we rebuke you. हर रुकावट हम तुझे डांटते हैं। Every hindrance which is as a giant, we command you to fall down. हर रुकावट जो बहुत बड़ा होकर खड़ा है, पहाड़ दानव की जैसा, उसे आज उसे हम तोड़ते हैं। And we set the church free और हम कलीसिया को स्वतंत्र करते to हैं। do the purpose of God, परमेश्वर की इच्छा को, to मकसद को move पूरा with the करने passion and desire of और God. परमेश्वर की चाहत को पूरा करने के लिए We pray for your passion, Lord. ओ तेरे चाहत के लिए प्रार्थना करते We हैं inquire of thee और हम पूछते हैं, मांगते हैं and we listen to you और तुझे सुनते हैं खुदा, and we will do which will please you and you और alone. हम वो करेंगे जो तुझे प्रसन्न करता We है। thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, for every member as we are connected together in one spirit. और हर एक जो अंग एक आत्मा होकर, एक शरीर होकर, देह होकर एक खड़ा है। Let there be miracles, wonders and demonstration of the Holy Spirit be done by everyone, Lord. ओ चिन्ह चमत्कार और प्रदर्शन हर एक की ओर से हो खुदा। Yes, Lord, let no fear may dominate over them. कोई डर उनमें हावी न हो We जाए। rebuke every fear and weapon of fear in Jesus' name. हर डर के हथियार को हम डांटते We हैं pray for the spirit of boldness to take complete control. और हम प्रार्थना करते हैं दृढ़ता के आत्मा को उनका ताबा ले। The spirit of obedience, आज्ञा पालन की spirit of आत्मा love को, for one another, प्रेम की आत्मा को, understanding. समझ Father, let it dominate in this body of Jesus. पिताजी यीशु मसीह के इस देह पर वो आत्मा हावी हो That we जाए may come and walk in the fullness कि हम आए और परिपूर्णता में चले with the purpose of God. परमेश्वर के मकसद से। We thank you, Father. हम धन्यवाद Everything करते that is हैं। exalts itself above the plan of God. हर चीज जो परमेश्वर के योजना के ऊपर अपने आप को रखती है, We command you to be fall down. हम आज्ञा देते हैं नीचे गिर जाए As each and everyone obey the call. और हर एक जो बुलावट को आज्ञा पालन करते हैं Let them prosper. वो उन्नति पाए, Let them grow वो बढ़े and lack no good. और कोई घटी न हो। Yes, Father. In their obedience, उनके आज्ञा पालन we में all will conquer, Lord. हम सब विजयशाली होंगे। We will प्रभु। conquer in Jesus' हम name. यीशु के नाम में विजयशाली होंगे। We will demolish the powers of darkness in Jesus' name. हम अंधकार के सारे ताकतों को नीचे गिराते हैं In Jesus' name. यीशु के In नाम Jesus' में। name. यीशु के In नाम Jesus' name. यीशु के Amen. नाम में। आमीन।